डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इन्फ्लेशन, और इसकी जो ऑप्शन है दैट इज always reduces cost of living, always reduces standard of living, reduces price of products, reduces purchasing power of money। और हम जानते हैं कि inflation always reduces purchasing power of money, therefore option D is the correct answer। Next question, how inflation affects the price of the commodities। हम जानते हैं कि inflation means when there is consistent rise in the price of goods and services, therefore option B, price of commodities increases, is the correct answer। Next question, that is the purchasing power of money varies। हम जानते हैं कि when there is inflation in the economy, the purchasing power of money decreases, and when there is deflation in the economy, the purchasing power of money increases। That means the purchasing power of money varies inversely with the price level, therefore option B, inversely with the price level, is the correct answer। Next question, if too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is known as। हम जानते हैं कि when too much money is chasing too few goods, that means the aggregate demand is greater than the aggregate supply। जब ये सिचुएशन इकोनॉमी में होती है वहां पे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देयरफॉर ऑप्शन सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is high inflation in the economy, how will it affect the supply of the money in the economy? That means there will be the increase in the supply of money, that is option C, supply of money increases, is the correct answer। Next question, how does inflation help us in the redistribution of income? Next, इसका जो right correct answer है that is disproportional change in prices। Next question, that is which of the following class will not be negatively affected by the higher inflation? इसके options है the consumer class, the debtor class, pensioner class, business class। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बिजनेस क्लास। बिकॉज विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, business class is able to make more and more profits, therefore business class is not negatively affected by the higher inflation। Next question, that is dash compared inflation with robbers। इसका जो correct answer है that is option B, Professor Brahmand and Vakil। Next objective is when inflation is a result of an increase in the price। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट न जाए। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट इज दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज measured by consumer price index, option A is the correct answer। Next question, inflation cannot continue indefinitely without, इसका जो correct answer है that is increase in the money supply, option A is the correct answer। Next question, which of the following concept is just opposite to deflation? हम जानते हैं कि deflation is a situation when there is decline in the price of goods and services, और इसका जो opposite है that is inflation। Inflation means when there is a general rise in the price of goods and services। Next question, that is which of the following concepts is the opposite of inflation? इसका जो correct answer है that is deflation, option A is the correct answer। Next question, disinflation means process of bringing down prices moderately, option C is the correct answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन इज दैट। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट मीन्स के ये जो दो टर्म्स है डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन, इनमें कोई फर्क ही नहीं है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। हम जानते हैं कि as inflation is harmful for the health of the economy, similarly deflation is also harmful for the health of the economy. Therefore we can say option B cannot be the correct answer. Next question, deflation can be positive. हम जानते हैं कि deflation जो है that is always negative, जो हमेशा negative होती है, because when there is general decline in the price of goods and services, there will be decline in the prices of goods and services. यहाँ पे जो next option है that is deflation can be negative while as disinflation cannot be negative. This is the correct answer, क्योंकि ये जो डिफ्लेशन है ये नेगेटिव होती है और जो डिसइंफ्लेशन है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि यह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा कि ये जो डिसइंफ्लेशन है इट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन प्राइसेस मॉडरेटली बाय यूजिंग द मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स। और कभी भी मॉनेटरी या फिस्कल अथॉरिटीज जो है वो कभी भी इन्फ्लेशन को बिलो 2% और 3% नहीं जाने देंगे, बिकॉज 2% or 3% inflation is good for the economy. The desirable rate of inflation is 2 to 3% for developing economies and 3 to 4% for developed economies. उसके बाद when and who invented the term inflationary gap, इसका जो करेक्ट आंसर है that is option D, James Keynes 19 in the year 1940. Next question, that is demand pull inflation occurs when, हम जानते हैं कि when aggregate demand is greater than aggregate supply, तो वहाँ पे क्या होता है, demand pull inflation होता है. Next question is when the price level of goods and services are falling continuously, this phenomena is called, उसको हम क्या कहते हैं, deflation कहते हैं. Therefore option A, deflation is the correct answer. Next question, demand pull inflation may be caused by, यहाँ पे जो इसके options है an increase in cost, a decrease in interest rate, a reduction in government spending, an outward shift of aggregate supply. इसका जो correct answer है that is a decrease in interest rate. Option B is the correct answer. लेकिन इसको हम यहाँ पे जो है समझने की कोशिश करेंगे थ्रू डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन के बारे में सुना होगा. दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज डिमांडेड. इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन से हम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं अलॉन्ग द ओ एक्स एक्सिस, और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करते हैं अलॉन्ग द ओ वाई एक्सिस. से दिस इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड को, मान लीजिए दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट पॉइंट E, this is the rate of interest and this is the level of amount of investment that is demanded. Now we are going to decrease the rate of interest, और हम देखेंगे what will be its effect on the level of investment. We are going to decrease the rate of interest from R to R1. हम देख पा रहे हैं यहाँ के the amount of investment has increased from I to I1. जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होगा तो उससे क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी भी इकोनॉमी में इंक्रीज होती है. उससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड दैट रिजल्ट्स इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देयरफॉर वी कैन से डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. ऑप्शन बी इज द correct answer. Next question, a government resorts to dash to reduce inflation. Option A, cuts in government spending is the correct answer. उसके बाद जो next question है, an increase in aggregate demand is more likely to lead to demand pull inflation. मतलब अगर इकोनॉमी में डिमांड पुल, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो उससे हमारी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है. कब? द रीजंस आर इफ एग्रीगेट सप्लाई इज कंप्लीटली इलास्टिक. मतलब अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगा. अगर
एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाता है तो दैट मीन्स देयर विल बी नो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट ऑप्शन, इफ एग्रीगेट सप्लाई इज कंप्लीटली इन इलास्टिक, दैट मीन्स अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ जाता है, दैट विल रिजल्ट इन एक्सेस increase in the aggregate demand as compared to the aggregate supply and will result in demand pull inflation. So therefore we can say that option B is the correct answer. Next question, that is dash is an effective method to control inflation in the economy. इसका जो correct answer है that is cash reserve ratio. एंड हम जानते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो जो है दैट इज मिनिमम प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड द डिपॉजिट्स the banks deposit the same with Reserve Bank of India or currency chests. हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विद द फाइनेंशियल institutions is equal to 1 lakh rupees and the CRR is equal to 5%. That means 5000 rupees जो है वो बैंक्स को डिपॉजिट करना होगा in the form of cash with Reserve Bank of India. For example, now the Reserve Bank of India increases the CRR from 5% to 10%. That means now the financial institutions have to deposit 10,000 with the Reserve Bank of India in the form of cash. That will increase the amount with the financial institutions. इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है कम होगी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है that is when the price rise is very slow like that of snail is called. ये जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है दैट इज बिटवीन 2 and 3%, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस राइज इज मोर देन 50% इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, और इट इज आल्सो नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. हम जानते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं हम? अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इट इज सिंपली, फिस्कल पॉलिसी जो होती है इट इज द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट्स इट स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी. इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें, इट इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे हम देखें, अगर ऑप्शन ए देखेंगे, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ये किसका काम है, मॉनेटरी अथॉरिटी का. चेंज इन टैक्स रेट, ये जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज कंट्रोलिंग मनी सप्लाई और मैनिपुलेटिंग बैंक रेट. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसके हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी और वी कैन से सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी के. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि फिस्कल पॉलिसी इनमें से जो है फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, it is a tool of fiscal policy. Taxation, it is also tool of fiscal policy. Transfer payments, it is also a tool of fiscal policy. And bank rate, it is not a tool of fiscal policy as it is a tool of monetary policy. So therefore option D is the correct answer. Next question, that is question number 28. Which of the following measures have to be adopted to curb out inflation from the economy? इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन टैक्सेस.
अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर लेवल को बढ़ाती है और टैक्सेशन लेवल को कम करती है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या देखना है कि इन्फ्लेशन को कम कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक द मेजर्स ऑफ डैश टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, फिर उसके बाद जो है इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स टू द ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, these all are the tools of fiscal policy. Therefore we can say option A, rationing of credit, is the correct answer. Next objective जो है that is, which one of the following steps taken by the government of India effectively controlled the double digit inflation in the economy in the 1970s। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 1973-74 जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया में था दैट वाज मोर देन 20%, और उसका जो मेन रीजन था दैट वाज द ऑयल प्राइस राइज इन द सेम ईयर, और जो ऑयल प्राइस राइज हुआ था दैट वाज बाय मोर देन 250%। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने टूल्स यूज किए थे टू कंट्रोल दैट 20% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो क्या था, कंटेन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड बजट डेफिसिट। व्हाट इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर? सबसे पहले अगर हम ये चीज देखें कि व्हाट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, दैट सिंपली मीन्स विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड ब्रिंग इनकम टू द इकोनॉमी। तो unproductive expenditure means which do not create any productive asset or can bring income to the economy. For example उसमें है, हम देख सकते हैं allowances to religious leaders, donation to clubs। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इकोनॉमी में कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं क्रिएट होता है, ना ही ये इकोनॉमी में इनकी वजह से कोई इनकम जनरेट होती है। एंड देन बजट डेफिसिट, that is simply we can say when government spends more in a given year then it collects in revenue। तो यही दो टूल्स जो है उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज किए थे टू कंट्रोल द डबल डिजिट इन्फ्लेशन। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज what is the base year for measuring inflation at wholesale price index in India? That is 2011-12. Next question that is, who wrote the book How to Pay for Money? ये किसने लिखी थी? प्रोफेसर कीन्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, inflation is always and everywhere a monetary phenomena, these are the famous words of, ये किसने कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज the policy relates to taxation, expenditure and borrowing of the government is known as, उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो हमारा फिलिप्स कर्व है, यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, एंड जो ये फिलिप्स कर्व होता है दैट इज लाइक दिस। ये क्या दिखा रहा है कि अगर हम इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन हमारा डिक्रीज होगा। दिस इज द ट्रेड ऑफ, दिस शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू मेजरिंग पैरामीटर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन फिलिप्स कर्व। वो कहाँ होता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में, विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ए, हम जानते हैं कि जो हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व रहता है, यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, एंड द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू द ओ वाई एक्सिस, और वी कैन से इट इज पैरेलल टू द इन्फ्लेशन एक्सिस। तो दैट इज ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन
B is the correct answer. Next question, that is the phenomena of stagflation could be attributed to. इसका जो correct answer है that is adverse supply shock. Next question, that is if inflationary expectations increase the Phillips curve, यहाँ पे that will shift to the right. This was also put forward by Friedman. Next question जो है that is people are said to have rational expectations if they, इसका जो correct answer है that is option D, use all available information in forming their expectations about inflation. उसके बाद next question, that is if the Phillips curve is vertical in the long run, then an increase in the money supply from year to year will dash the unemployment rate and will dash the inflation rate. अब हम यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम एक फिलिप्स कर्व को ड्रा करेंगे. यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. ये जो वर्टिकल यहाँ पे हम एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यहाँ पे ड्रा करके देखेंगे. नाउ इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो है दैट विल इंक्रीज आफ्टर ईयर. दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉट चेंज इंक्रीज. दैट मीन्स increase in the money supply from year to year will not change the unemployment rate and will increase the inflation rate. उसके बाद जो next question है that is the long run Phillips curve has the same shape as, हम जानते हैं कि जो हमारा Phillips curve रहता है long run Phillips curve that is vertical always, that means that is parallel to the OY axis. और जो long run aggregate supply curve रहता है that is always also parallel to the OY axis, or we can say that is also vertical in shape. So therefore we can say that long run Phillips curve has the same shape as the long run aggregate supply curve. Next question, that is for reducing unemployment, price in the form of dash has to be paid in Phillips curve. इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. अब हम देखेंगे कि if the government is willing to reduce the unemployment, say this is the equilibrium position, that means unemployment level is U and the inflation rate is I. Now if the government is willing to reduce the unemployment, say from U to U1, that means there will be increase in the inflation from I to I1, that means high rate of inflation. इसका जो correct answer है that is option B, high rate of inflation. That means for reducing unemployment, price in the form of high rate of inflation has to be paid in Phillips curve. Dear students, आज हमने कुछ important objectives related to the inflation and unemployment देखे. आने वाले दिनों में हम कुछ और कंटेंट से रिलेटेड, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड important objectives देखेंगे. Till then, take care.